Hello friends, I Dr. Surendra Kumar Gupta, Professor and Head Engineering Mathematics Department of Basic Science in the College Oriental College of Technology. Now today we are discuss about the Engineering Mathematics 1 Module 2 and today is my second lecture double integration of part 2. In the previous lecture we have discussed about the what is the definition of the double integration and how to evaluate the double integration, and the today lecture we discuss about the word problem of the double integration. Now the first question is problem number 1. Evaluate double integration y dx over the part of the plane bounded by the line y equal to x and the parabola y equal to 4x minus x square. Now in this question we have the double integration region R which is bounded by the two planes. One is the called line y equal to x and second is the parabola y equal to 4x minus x square. So first of all we write the I equal to double integration y dx, the equation of given curve R y equal to x which shows the straight line, and the second y equal to 4x minus x square which is the equation number 3 and shows the parabola. Now we have to solve these two equations, that means 4x minus x square equal to x, that means x equal to 4x minus x square. It means that x square minus 3x equal to 0. It means that x equal to 0 and x equal to 3. Now putting x equal to 0 and x equal to 3 in equation number 2, so we get y equal to 0 and y equal to 3. Then from the equation number 2 we have y equal to 0 and y equal to 3. Now point of intersection of the given curve R 0 0 and 3 3, that means the curve y equal to x and the curve y equal to 4x minus x square both are intersect at the point origin and the point 3 3. In the region R the limits are, it is clear that the limits are the limit of y from x to 4x minus x square and the limit of x is 0 to 3. Now we see that in this diagram, now this is your parabola y equal to 4x minus x square which are intersect at the origin and the point 3 3. Okay. Now we evaluate the integration with respect to y, x to 4x minus x square, that my y integration of y is y square upon 2, that means 4x minus x square whole square minus of x square. Now we expand the 4x minus x square to whole square which is the 16x square plus x to the power 4 minus 8x cube minus of x square. It means 15x square plus x to the power 4 minus of 8x cube. Now we simplified this integration. Now the integration of x square is x cube upon 3, that means a 5x cube. X to the power 4 is x to the power 5 upon 5, and 8x cube it is 8x to the power 4 upon 4, that means a 2x to the power 4. Now we substitute the limit in the part of x. This is a 5 into 3 to the power 3, that means a 405, and the 3 to the power 5 the 243 upon 5 minus 2 into 3 to the power 4, that means a 162. Now we simplified this term, so we get 54 upon 5. Now our second question is evaluate double integration R e to the power 2x plus 3y dx dy, where R is a triangle bounded by x equal to 0 and y equal to 0 and x plus y equal to 1. इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास जो इंटीग्रेशन जो R जो है यानी कि रीजन R जो है वो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, और ट्रायंगल जो आपका बाउंडेड हो रहा है वो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 1 से बाउंडेड होगा. सबसे पहले हम अपना इंटीग्रेशन लिख लेते हैं. देन द रीजन R बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x प्लस y इक्वल टू 1, जैसे कि आप इस डायग्राम में आप सामने देख रहे हैं ये हमारे पास ओरिजिन है. अगर हम x इक्वल टू 0 बनाना चाहेंगे तो x इक्वल टू 0 आपके पास ये वाले पोर्शन होगा, y इक्वल टू 0 आपके पास ये वाला पोर्शन होगा, लाइक दिस. अगर हम x प्लस y इक्वल टू 1 की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x और y एक्सिस पर 1 का इंटरसेक्ट फॉर्म करेगी, लाइक इस प्रकार से. तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस y इक्वल टू 1. अब अगर x इक्वल टू 0 के रीजन की बात करेंगे तो x इक्वल टू 0 का रीजन हमारे पास ये कहलाएगा, y इक्वल टू 0 का रीजन हमारे पास ये कहलाएगा, और x प्लस y इक्वल टू 1 का रीजन हमारे पास ये कहलाएगा. यानी कि आपके पास जो बाउंडेड रीजन हमारे पास होगा वो हमारे पास इस प्रकार से होगा. तो अगर ये कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास O है यानी कि 0 0 है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास 1 0 0 1 हमारे पास कहलाएंगे. तो बाउंडेड रीजन हमारे पास इस
एरिया को हम यहाँ पर कह रहे हैं, और अब इस एरिया में हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, जिसको अगर हम चाहें तो पैरेलल टू वाई एक्सेस और पैरेलल टू एक्स एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसको पैरेलल टू वाई एक्सेस अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वो हमारा कहलाएगा डी एक्स डी वाई। और अगर हम इसी स्ट्रिप को अगर पैरेलल टू अगर एक्स एक्सेस अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में डी वाई डी एक्स लाता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर इस स्ट्रिप को पैरेलल टू वाई एक्सेस ड्रॉ किया हुआ है। आइए हम बात करते हैं कि हमारी लिमिट क्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर इस स्ट्रिप की हेल्प से हम बड़ी आसानी से लिमिट निकाल सकते हैं। अगर हमारी स्ट्रिप, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सेस है तो हम यहाँ पर y की लिमिट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल। तो y की लिमिट होगी और आपके पास y इक्वल टू 0 से, और आपकी फिनिश हो रही इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास लिमिट कहलाएगी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी हमारे पास जो x की लिमिट होगी वो 0 से मूव करेगी 1 तक, यानी कि x की लिमिट होगी 0 से 1। तो अब हम अपने इंटीग्रेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स ए टू द पावर 2x प्लस 3y dx dy। अब देखिएगा कि ये लिमिट हमारे पास x में, इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो हम ए टू द पावर 2x को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे ए टू द पावर 3y का। ए टू द पावर 3y का जो इंटीग्रेशन होता है वो ए टू द पावर 3y अपॉन 3 होगा। अब हम यहाँ पर y की जगह 1 माइनस एक्स रखते हैं और y की जगह 0 रखेंगे। तो y की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो मिलेगा आपको e टू द पावर 3 1 माइनस एक्स माइनस e टू द पावर 0 यानी कि 1। अब e टू द पावर 2x को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको मिलेगा e टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस e टू द पावर 2x। नेक्स्ट अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। e टू द पावर 3 माइनस एक्स को यदि हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर 3 माइनस एक्स इंटू माइनस साइन मिलेगा, और e टू द पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो e टू द पावर 2x अपॉन 2 होगा। अब हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई क्यू माइनस 1 अपॉन 3। नाउ इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो आपको मिलेगा माइनस 3 ई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलेगा प्लस ई क्यू प्लस 1/2। अब हम चाहे तो 3 का डिवाइड कर दें, चाहे तो हम ये आंसर भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/3 माइनस 3 ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई क्यू प्लस 1/2। आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसमें आपको हमने बताया कि जो वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं लिमिट। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन रीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है डी से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, वेयर डी इज अ रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 और द सर्कल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये शब्द अगर लिख जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर हम x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखा। इंटीग्रेशन लिखने के बाद हमने d जो हमारा बाउंडेड रीजन है वो हम रीजन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद हमें यहाँ से लिमिट निकालनी है। तो पहले इस सर्कल से हम लिमिट निकालेंगे। तो सर्कल की जो लिमिट होगी y की वो मिलेगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। लेकिन हमको यहाँ पर y जो दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो y की लिमिट जो होगी वो 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, जबकि x की लिमिट जो होगी वो 0 से 1 होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास x की लिमिट 0 से 1 क्यों होगी, क्योंकि जब हम x की लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर हम y को ले लेंगे 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 1 यानी कि प्लस माइनस 1। चूंकि हमें क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसलिए x की लिमिट जो होगी 0 से 1 कहलाएगी। आई होप आपको लिमिट समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो ओवरऑल हमारा इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई है। तो अब चूंकि लिमिट हमारे पास x में है तो हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो हम पहले वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करते तो हमारे पास आएगा वाई क्यू अपॉन 3। y की जगह यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको मिलेगा y की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 0, यानी कि ओवरऑल हमारे पास इंटीग्रल जो हो गया 1/3 0 टू 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप देखेंगे ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास कुछ बीटा फंक्शन की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये बीटा फंक्शन की तरह हम इसको बाद में सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब हमारे पास यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की जगह सिंगल एक्स हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x इक्वल टू मिलेगा y टू दी पावर 1/2, यानी dx इक्वल टू मिलेगा आपको 1/2 y टू दी पावर माइनस हाफ dy।
लिमिट में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको y इक्वल टू 0 मिलेगा, और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी आपको y इक्वल टू 1 ही मिलेगा। तो आपके पास हो गया इंटीग्रल 1/3 0 to 1, इस x स्क्वायर की जगह आपने y रख दिया, देन 1 माइनस y टू द पावर 3/2, और dx की जगह आपने रख दिया 1/2 y टू द पावर माइनस हाफ। अब इस y और इस y की पावर माइनस हाफ को यदि हम सिंप्लीफाई करते तो y की पावर प्लस हाफ मिलेगा। इस प्रकार से अब y की पावर प्लस हाफ को हम लिख सकते हैं y की पावर 3/2 माइनस 1, और 1 माइनस y की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 5/2 माइनस 1। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे बीटा फंक्शन से, जो कि बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि m की जगह आपको 3/2 मिल रहा है और n की जगह आपको यहाँ पर 5/2 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब बीटा mn का यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट और अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास होता है रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि होता है बीटा mn इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा 1 m प्लस n। तो यानी गामा 3/2 गामा 5/2 3/2 प्लस 5/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 यानी कि 4। गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई, और गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 1/2 और रूट पाई। इस प्रकार से फैक्टोरियल 4 हम गामा 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, और फैक्टर 3 के मतलब है ये वाला 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के रूट पाई का रूट पाई से मल्टीप्लाई करो 3 पाई मिलेगा, और आपको नीचे मिल गया 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको मिल गया पाई बाय 96। आपने देखा कि जो इंटीग्रेशन हमारे पास जो टिपिकल फॉर्म में था, जो हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते थे, उस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर बीटा गामा का रिलेशन का यूज करते उसको सिंप्लीफाई किया। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इन वर्ड प्रॉब्लम में हम लिमिट किस प्रकार से इवैल्यूएट करते हैं। इंटीग्रेशन आर एक्स वाई dx dy where r is a region bounded by the curve y equal to x square and x equal to minus y square। अब देखिए y equal to x square का मतलब क्या हुआ, इट इज अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, और x equal to minus y square का मतलब क्या हुआ, इट इज अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस बट द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा, इंटीग्रेशन लिखने के बाद हमने दोनों कर्व को यहाँ पर लेगा। अब इन दोनों कर्व के हमें इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालने हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हमारे पास एक से ज्यादा कर्व हमारे पास आते हैं तो वहां पर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कन्वर्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा y टू दी पावर 4, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y इक्वल टू मिल जाएगा y टू दी पावर 4 यानी कि y 1 माइनस वाई क्यू, और यहाँ पर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 मिलेगा। इस x y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला कर्व जो है आपका x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर को प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने जो स्टेप लिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिए। जब भी अगर आप स्टेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो dy dx लेना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने यहाँ पर स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस क्यों नहीं ली। ऐसा हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आप नेगेटिव पोर्शन को आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे कि हमारा लिमिट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिमिट लिए स्टेप लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इस स्टेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस से हमें लिमिट मिलेगी x की, जो कि हमें मिलेगी माइनस वाई स्क्वायर से रूट वाई। तो ओवरऑल हमारे पास लिमिट होगी x की माइनस वाई स्क्वायर से रूट वाई, और x की लिमिट हमारे पास आ रही है, x की लिमिट हमारे पास y की लिमिट हमारे पास आ रही है 0 से 1। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर रख देते हैं, तो आपका होगा 0 to 1 अंडर इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर टू रूट वाई। अब चूंकि लिमिट आपको y में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये लिमिट x की है, तो आपको पहले यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर बाय 2। इस x की जगह रूट y रखेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस वाई टू दी पावर 4, y के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 4, y स्क्वायर का इंटीग्रल होगा y क्यू अपॉन 3, और y टू दी पावर 5 का होगा y टू दी पावर 6 अपॉन 6। ओवरऑल आपको मिलेगा 1/3 माइनस 1/6। इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करते तो 1/6 से, यानी कि आपको फाइनली मिलेगा 1/12। तो आपने बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से
जिससे कि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से आप इन 4 क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा, इन 4 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिए हुए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ओरिएंटल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ओरिएंटल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको किसी भी प्रकार की अगर इंक्वायरी करनी है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।